Hello students, welcome back in the chapter The Establishment of Power of Company. Firstly, you have come to know about the mercantilism, and after that trade wars, and after that you have come to know that how companies came in India and they subjugate the territory of the India. And now today we are going to learn about the East India Company in Bengal and the War of Plassey. Let us know what happened during this time. Yes, students, you have read about that many European companies came in India and they made their influence. But in the last, British East India Company gained over that. Today we will learn about how British East India Company in Bengal and wars with local rulers. Bengal was a very fertile and wealthy province of the Mughal Empire. It was also equally progressive in trade, commerce and industrial growth. The British East India Company enjoyed several trading facilities. बंगाल एक फर्टाइल मीन्स उपजाऊ और एक धनी क्षेत्र था जो कि मुगल एम्पायर का था। ये व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों के मेल के लिए भी प्रसिद्ध था। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंजॉयड सेवरल ट्रेडिंग फैसिलिटीज़। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार की काफ़ी सुविधाओं का आनंद लिया। इट वॉज फ्री टू ब्रिंग इन एंड टेक आउट एवरीथिंग विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इन बंगाल। कस्टम ड्यूटी होता है चुंगी कर। उनके लिए बंगाल से आना जाना, व्यापार करना बिल्कुल फ्री था। द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन टू मिस यूज दीज राइट्स एंड स्टार्टेड देयर ओन प्राइवेट ट्रेड अलॉन्ग विद दैट ऑफ द कंपनीज ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्स। इस सुविधा का अफसरों ने गलत फायदा उठाया और उन्होंने अपना प्राइवेट व्यापार करना शुरू कर दिया बिना टैक्स दिए। This illegal trade by the company's officials was a cause of enormous loss to the revenue of the Bengal province. इस तरह से बंगाल को राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। They could not tolerate this illegal trade carried out by the company officials for their own benefit. वो इस बात को सहन नहीं कर पाए। अलीवर्दी खान, the then Nawab of Bengal, tried to keep a strict control over the activities of the company. अली वर्दी खान जो उस समय बंगाल का नवाब था, उसने कंपनी की इस एक्टिविटीज पर कंट्रोल करने की कोशिश की। बट आफ्टर हिज डेथ, हिज ग्रैंडसन सिराजुद्दौला बिकेम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। उसकी मृत्यु के बाद उसका ग्रैंडसन सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। He was inexperienced. उसे कोई अनुभव नहीं था। The company took this opportunity to interfere in the politics of Bengal, which paved the way for the Bengal Battle of Plassey. कंपनी ने इस मौके का फायदा उठाया और बंगाल की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया, जो प्लासी के युद्ध का कारण बनी। पेव्ड का अर्थ होता है टू गिव स्टार्ट। Now let us know about the Battle of Plassey. The Battle of Plassey was fought on 23rd June 1757 among Sirajuddaulah, the Nawab of Bengal and the British East India Company. प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। Sirajuddaulah was well aware of the political activities of the British. He ordered them to stop the fortification of Fort William, which paved the way for the Battle of Plassey. प्लासी के युद्ध का कारण क्या बना? सिराजुद्दौला जो है ब्रिटिश के पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बारे में अवेयर था, जागरूक था। उसने फोर्ट विलियम के किलेबंदी को रोकने का आदेश दिया, जो प्लासी के युद्ध का कारण बना। द नवाब वाज इन्फ्यूरेटेड होता है
टू गेट एंग्री, गुस्सा होना। When his order was disobeyed, जब उसके ऑर्डर को, उसके आदेश को माना नहीं गया तो उसे वह नाराज हो गया। He seized कासिम बाजार and marched towards Fort William with a large army and occupied the fort on 20th June 1756. उसने कासिम बाजार पर कब्जा किया, सियाइज होता है कब्जा करना, और फोर्ट विलियम की तरफ चल पड़ा अपनी बड़ी सेना के साथ 20 जून 1756 को। When large army had occupied the fort on 20th June 1756, when the news reached Madras, a large naval fleet under Admiral Watson and an infantry under Robert Clive reached Calcutta with much difficulty. इन्फेंट्री होता है पैदल सेना। जब ये समाचार मद्रास में पहुंचा तो एक बड़ी पैदल सेना जो है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कलकत्ता पहुंची। क्लाइव वांटेड टू रिगेन फोर्ट विलियम एट एनी कॉस्ट। क्लाइव जो है फोर्ट विलियम पर किसी भी तरह कब्जा करना चाहता था। Thus he used every possible means to bring about the downfall of सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के पतन के लिए उसने हर संभव कोशिश की। He knitted a plan against him। उसने एक जाल बुना, एक योजना बनाई। He won over the rebellious nobles। उसने बागियों के ऊपर जीत हासिल की। He also assured मीर जाफर that he would be nominated as the next नवाब of बंगाल। उसने मीर जाफर को यह एश्योरेंस दिया, आश्वासन दिया कि वह उसे अगला नवाब बनाएगा। However, the war became inevitable। Inevitable means जरूरी, मैंडेटरी, अनिवार्य हो गई थी। ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, बदलती हुई परिस्थितियों के कारण। बोथ द साइड्स मेट एट प्लासी। दोनों साइड्स प्लासी में मिले। ए बैटल नोन इन हिस्ट्री एज प्री प्लान। ये युद्ध ऐसा था, ये लड़ाई ऐसी थी जो कि प्री प्लान थी। मीर जाफर टुक नो पार्ट इन इट। मीर जाफर ने इसमें भाग ही नहीं लिया। ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द नवाब आर्मीज फोर्ट ब्रेवली। नवाब की छोटी सी सेना जो है, छोटा सा भागने से लड़ा, बट लोस्ट टू द ब्रिटिश आर्मी। लेकिन ब्रिटिश आर्मी के आगे वो हार गए। सिराजुद्दौला वाज कैप्चर्ड। सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया। एंड लेटर ही वाज असैसिनेटेड। और फिर उसका कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार आपने देखा कि प्लासी के युद्ध कैसे हुआ, किसने उसमें भाग लिया और इसके क्या परिणाम रहे। इन द नेक्स्ट वी विल डू द बैटल ऑफ बक्सर। लेट अस नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स। फर्स्ट इज फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, और यू कैन से प्रोडक्टिव। सेकेंड वर्ड इज एनॉर्मस। एनॉर्मस मीन्स अ लॉट ऑफ, काफ़ी संख्या में। थर्ड इज रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स ए टाइप ऑफ टैक्स, राजस्व। पेव्ड मीन्स टू गेट प्रोग्रेस, या रास्ता खोलना, पक्का करना। इन्फ्रेटेड मीन्स टू गेट एंग्री, गुस्सा दिलाना। नेक्स्ट इज इन्फेंट्री। इन्फेंट्री इज ए टाइप ऑफ मिलिट्री ऑन फुट, पैदल सेना। रिबेलियस मीन्स विद्रोही या बागी। इनएविटेबल विच इज मैंडेटरी, अनिवार्य। असैसिनेटेड मीन्स मर्डर्ड, कत्ल करना। You know, students, that Bengal was a very fertile province, so company took opportunity to gain over it, and it paved to the War of Plassey. In the next video, we will study about the War of Buxar. Till then, goodbye. Always stay happy.